মুহূৰ্ত দেশৰ ৰাজনীতিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ অহা 4 জুনত কেন্দ্ৰত হলনি হ'ব চৰকাৰ এনডিএ পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে কেন্দ্ৰত এবাৰ 4 জুনত কেন্দ্ৰত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে এই ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে এবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি পৰাজয় হোৱাটো নিশ্চিত বিজেপি শাসনৰ পৰা আতৰিব লাগিব সমান্তৰালকৈ তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদী যাৰ বাবে এতিয়া পৰাজয়ৰ ভয়ে খেদি ফুৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক এই মন্তব্য কৰিছে ৰাহুল গান্ধী আৰু এই যি পৰাজয়ৰ ভয়ে খেদি ফুৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীক তাৰ বাবে প্ৰতিখন নিৰ্বাচনী সভাত মুখত যি আহে তাকে কৈ গৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এক প্ৰকাৰ দেশৰ জনতাক বিভ্ৰান্তিকৰ মন্তব্যৰে বিপথে পৰিচালিত কৰিব বিচাৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে পুনৰবাৰ কৈছো ৰাহুল গান্ধীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে দেশৰ জনতাক বিভ্ৰান্তিকৰ মন্তব্যৰে বিপথে পৰিচালিত কৰিব বিচাৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ দেশৰ কোটি কোটি জনতাক আহ্বান যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই মন্তব্যত এইবোৰ কথাত জনতা ভুল না যাব অন্যথা আপোনালোকৰহে সমস্যা হ'ব এনে ধৰণে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে কেৱল ইমানেই নহয় ৰাহুল গান্ধীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে এই 10 বছৰত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেৱল মাত্ৰ আদানী আম্বানীৰ বাবেহে কাম কৰিলে কিন্তু দেশৰ দৰিদ্ৰ কৃষকৰ বাবে দেশৰ দৰিদ্ৰ জনতাৰ বাবে একো কামে নকৰিলে এই 10টা বছৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এনে ধৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক ৰূপত দেখা পোৱা গ'ল কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীক এই মুহূৰ্তত জনাই আছো বিগ পলিটিকেল নিউজ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে মহাবিস্ফোৰণ কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী পৰাজয়ৰ সংকাতে জিটি কথা কৈ ফুৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই মন্তব্য কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে দেশৰ জনতাক বিভ্ৰান্তিকৰ মন্তব্যৰে বিপথে পৰিচালিত কৰিব বিচাৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এবাৰ মোদীৰ পৰাজয় নিশ্চিত এবাৰ কোনো পধ্যে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে কেন্দ্ৰত শাসন কৰিব নোৱাৰে অহা 4 জুনত দেশত গঠন হ'ব ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ চৰকাৰ এই ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে দেশৰ কোটি কোটি জনতাক যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো সকলো প্ৰতিশ্ৰুতি আমি পূৰণ কৰিম এই মন্তব্য কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যোৱা 10 বছৰত কেৱল মাত্ৰ আদানী আৰু আম্বানীৰ বাবেহে কাম কৰিলে ইয়াৰ বাহিৰে আন কাৰোৰে বাবে কাম নকৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মিছা বিভ্ৰান্তিকৰ কথাত জনতা ভুল নাযাব এই আহ্বান জনাইছে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে আগন্তুক 4-5 দিনলৈ নাটক কৰি থাকিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জিটি কথা কৈ থাকিব বিভ্ৰান্তিকৰ কথাৰে জনতাক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কিন্তু তেনেবোৰ কথাত জনতা ভুল নাযাব ইপিনে আদানী আম্বানীৰ পৰা টকা লোৱা প্ৰসংগটো প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আপুনি ভয় কৰিলে নেকি প্ৰশ্ন কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে কেৱল ইমানেই নহয় আদানী আম্বানীয়ে টেম্পুত যে পইচা দিয়ে সেই কথা আপুনি কেনেকৈ জানে এয়া আপোনাৰ নিজৰ অভিজ্ঞতা নেকি মোদীজী এই প্ৰশ্ন কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে যদি আমি টকা লৈছো তেন্তে আমাৰ বিৰুদ্ধে ইডি সিবিআই লগাই তদন্ত কৰক এই হুংকাৰ দিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে যেহেতু কিছুদিন পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এটা মহা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে যে নিৰ্বাচনৰ আগে আদানী আম্বানীৰ বিৰুদ্ধে কথা কৈ আছিল আদানী আম্বানী গালি দি আছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে কিন্তু যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিলে তাৰ পিছত আদানী আম্বানীক গালি নিদিয়া হ'ল ৰাহুল গান্ধীয়ে টেম্পু ভৰাই আদানী আম্বানীৰ পৰা কলা ধন লৈছে এনে ধৰণে মহা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি ৰাহুল গান্ধীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেনেকৈ জানে যে আদানী আম্বানীয়ে টেম্পুত পইচা দিয়ে নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছে নেকি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যদি সাহস আছে তেনেহলে আমাৰ পিছত ইডি সিবিআই লগাই দিয়ক আৰু তদন্ত কৰক যে আমি আদানী আম্বানীৰ পৰা টকা লৈছো এনে ধৰণে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে তদুপৰি ৰাহুল গান্ধীৰ ফালৰ পৰা স্পষ্ট ৰূপত কোৱা হৈছে
দেশৰ জনতাক বিভ্ৰান্তিকৰ মন্তব্যৰে বিপথে পৰিচালিত কৰিব বিচাৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কিন্তু জনতা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কথাত ভুল নাযাব। অহা 4 জুনত কেন্দ্ৰত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে। ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ চৰকাৰ হ'ব। সেইবাবে বিজেপিয়ে ভয় খাইছে, নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভয় খাইছে আৰু জনতাক মাজত যি টি কথা কৈ ফুৰিছে বিজেপিয়ে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। এই মুহূৰ্তত ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্যৰ ভাষণৰ কিয়দাংশ আমাৰ লগত আছে। কি কৈছে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ राहुल गांधी? मन शुनक। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। देश की शक्ति, देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है। वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। हम भर्ती भरोसा स्कीम ला रहे हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। 15 अगस्त तक भर्ती भरोसा स्कीम में 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू हो जाएगा। जय हिंद, नमस्कार। आपने कहा कि आपकी 250 गाड़ियों को रोका गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 250 रोको, 400 रोको, 1000 रोको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितनी रोकनी है रोको। यहां पे इंडिया गठबंधन की जीत होगी, अखिलेश यादव की जीत होगी। और उत्तर प्रदेश में आप देखना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिख के ले लो। यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि देश को उत्तर प्रदेश रास्ता दिखाता है और उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है। इसीलिए डिसीजन भाइयों और बहनों ले लिया गया है। जनता ने मन बना लिया है। आपने देखा होगा 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अंबानी का नाम नहीं लिया। 10 साल हजारों स्पीचें दी, अदानी अंबानी का नाम तक नहीं लिया। मगर अब भैया देखिए, जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं, मुझे बचाओ, अदानी अंबानी जी मुझे बचाओ। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने नाम लिया। अच्छा, उनको यह भी मालूम है कि अदानी जी कौन से टेम्पो में और कैसे पैसा भेजते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रधानमंत्री जी का।
टेम्पो वाला। तो भाइयों और बहनों, अब बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह आपके ध्यान को इधर उधर ले जाने की कोशिश करेंगे। अगले 10-15 दिन में आप देखना, ये आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश करेंगे, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। आपको भटकना नहीं है। हिंदुस्तान के चुनाव में एक ही मुद्दा है, उस मुद्दे से सारे के सारे मुद्दे निकलते हैं। मुद्दा भाइयों और बहनों ये है हिंदुस्तान का संविधान। ये जो है, इस किताब ने हिंदुस्तान के गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को अधिकार दिया है। जो भी आपको मिला है, चाहे वो वोट हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, नौकरी हो, जमीन हो, जो भी आपको हक मिले हैं, इस किताब ने आपको हक दिए हैं। ये गांधी जी और अंबेडकर जी की देन है। और बीजेपी ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीते तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को रद्द करने जा रहे हैं। और मैंने और अखिलेश जी ने निर्णय ले लिया है कि इस किताब को बीजेपी छोड़ो, दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं छू सकती है, क्योंकि इस किताब में हिंदुस्तान के गरीब लोगों की आत्मा है, भावनाएं हैं, भविष्य है, विकास है। नरेंद्र मोदी जी 22 लोगों के लिए काम करते हैं। भाइयों और बहनों, 22 लोगों का उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को दिया है। भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका नरेंद्र मोदी जी ने कितना कर्जा माफ किया है? किसानों का नहीं किया, मजदूरों का नहीं किया, बेरोजगार युवाओं का नहीं किया, 22 लोगों का किया। हालत यह है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। आप सोचिए, स्टेज में पहली लाइन में तकरीबन 22 लोग बैठे हैं। हिंदुस्तान में ऐसे 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। यह है नरेंद्र मोदी जी का काम। तो हमने निर्णय ले लिया है, कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने, कि अगर वो 22 अरबपति बना सकते हैं तो हम करोड़ों लाखपति भी बना सकते हैं। भाई और बहनों, गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटी, सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। पूरे हिंदुस्तान की लिस्ट बनेगी। जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, यह काम किसी भी सरकार ने, दुनिया की किसी भी सरकार ने नहीं किया है। सारे गरीबों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। महीने के 8,500 रुपए हर महीना 1 तारीख को खटाखट 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 करोड़ों परिवारों के बैंक अकाउंट में। जिंदगी बदल जाएगी। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को मदद की, वैसे ही हम करोड़ों लोगों को लाखपति बनाने जा रहे हैं।
भाइयों और बहनों, ये पैसा हर महीने मिलेगा और उस दिन तक मिलेगा जिस दिन तक ये परिवार गरीबी रेखा से नीचे होंगे। जब तक ये गरीबी रेखा के ऊपर नहीं जाएंगे, उस दिन तक हर महीने इनको पैसा मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। ये मीडिया वाले कहेंगे कि देखो, इंडिया गठबंधन गरीबों की आदत बिगाड़ रहा है। मैं इनसे कहना चाहता हूं, जब नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, तो उनकी आदत नहीं बिगड़ी क्या? अरबपतियों की आदत नहीं बिगड़ी क्या? और आपको जो कहना है कहो, जो मीडिया वालों को कहना है कहो। आप कहते हो मोदी जी का जितना फोटो लगाना है लगाओ, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कहते हो। आप हो ही मोदी के, आप अदानी के हो, आप मोदी के हो, आप किसानों के नहीं हो, मजदूरों के नहीं हो, गरीबों के नहीं हो, पिछड़ों के नहीं हो, दलितों आदिवासियों के नहीं हो। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों युवाओं को बेरोजगार बनाया। कोविड आया, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं से कहा, भाइयों और बहनों, थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ। और जो मजे की बात आप सुनिए, आपसे उन्होंने कहा थाली बजाओ, और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में जो लोग, जिस कंपनी ने वैक्सीन बनाई, उस कंपनी से बीजेपी ने करोड़ों रुपया लिया। करोड़ों आपका रुपया नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से लिया। आप मर रहे थे, आपके पास ऑक्सीजन नहीं था, वेंटिलेटर नहीं था, और आपसे वो कह रहे थे थाली बजाओ, और कंपनी वो कह रहे थे हमें पैसा दो। ये नरेंद्र मोदी की सच्चाई है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में साफ लिखा है। भाइयों और बहनों, बेरोजगार युवाओं के लिए पहली नौकरी पक्की स्कीम है। मतलब समझा देता हूं, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, सरकारी ऑफिसेज में 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, और बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए करोड़ों युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं। किसानों से कहना चाहता हूं, उन्होंने अरबपतियों का कर्जा माफ किया, हम आपका कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और मजदूरों से कहना चाहता हूं, आज आपको 250 रुपए मिलता है मनरेगा में, आपको 400 रुपए मिलेगा इंडिया गठबंधन की सरकार आने के एकदम बाद। आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं से कहना चाहता हूं, आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, मन बना लिया है, जितना पैसा इन्होंने अदानी अंबानी को दिया, उतना पैसा इंडिया गठबंधन की सरकार हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को देने जा रही है। कर लो जो करना है आपको, आप जो करोगे करो, हम जो करने वाले हैं हम करेंगे। भाइयों और बहनों, एक बात याद रखो, चुनाव में 10-15 दिन बचे हैं, मगर एक बात गारंटी करके लिख लो, हमने जो काम करना था, अखिलेश जी ने, इंडिया गठबंधन ने, हम सब ने मिलकर पिछले 2 साल से हम काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, न्याय यात्रा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग, हमने जो काम करना था भाइयों और बहनों, हमने कर दिया है। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। बात खत्म हो गई है।
मीडिया वाले नहीं बताएंगे, मगर याद रखो, कोरोना के बारे में मैंने कहा था, याद रखो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। यहां पे मेरे भाई अखिलेश यादव को भारी बहुमत से जिताना है, सबसे ज्यादा वोटों से जिताना है। इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ताओं मिलकर एक हो जाओ। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी के बाकोई, देखो इतना जोश है, आपने छत को भी रोक दिया। शाबाश। तो नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं? क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। देश की शक्ति, देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। हम भर्ती भरोसा स्कीम ला रहे हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। 15 अगस्त तक भर्ती भरोसा स्कीम में 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू हो जाएगा। जय हिंद, नमस्कार। आपने कहा कि आपकी 250 गाड़ियों को रोका गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 250 रोको, 400 रोको, 1000 रोको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितनी रोकनी है रोको। यहां पे इंडिया गठबंधन की जीत होगी, अखिलेश यादव की जीत होगी। और उत्तर प्रदेश में आप देखना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिख के ले लो। यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि देश को उत्तर प्रदेश रास्ता दिखाता है और उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है। इसीलिए डिसीजन भाइयों और बहनों ले लिया गया है, जनता ने मन बना लिया है। आपने देखा होगा 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अंबानी का नाम नहीं लिया। 10 साल हजारों स्पीचें दी, अदानी अंबानी का नाम तक नहीं लिया। मगर अब भैया देखिए, जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं, मुझे बचाओ, अदानी अंबानी जी मुझे बचाओ।
इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने नाम लिया। अच्छा, उनको यह भी मालूम है कि अदानी जी कौन से टेम्पो में और कैसे पैसा भेजते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रधानमंत्री जी का, टेम्पो वाला। तो भाइयों और बहनों, अब बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह आपके ध्यान को इधर उधर ले जाने की कोशिश करेंगे। अगले 10-15 दिन में आप देखना, ये आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश करेंगे, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। आपको भटकना नहीं है। हिंदुस्तान के चुनाव में एक ही मुद्दा है, उस मुद्दे से सारे के सारे मुद्दे निकलते हैं। मुद्दा भाइयों और बहनों ये है हिंदुस्तान का संविधान। ये जो है, इस किताब ने हिंदुस्तान के गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को अधिकार दिया है। जो भी आपको मिला है, चाहे वो वोट हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, नौकरी हो, जमीन हो, जो भी आपको हक मिले हैं, इस किताब ने आपको हक दिए हैं। ये गांधी जी और अंबेडकर जी की देन है। और बीजेपी ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीते तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को रद्द करने जा रहे हैं। और मैंने और अखिलेश जी ने निर्णय ले लिया है कि इस किताब को बीजेपी छोड़ो, दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं छू सकती है, क्योंकि इस किताब में हिंदुस्तान के गरीब लोगों की आत्मा है, भावनाएं हैं, भविष्य है, विकास है। नरेंद्र मोदी जी 22 लोगों के लिए काम करते हैं। भाइयों और बहनों, 22 लोगों का उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को दिया है। এনিটক্স, সুতৰ বিপৰীতে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত।